Okay, guys, we've stopped over here in the previous video. Okay, like in triangle ABC, the sides are given as 1 is to root 2 is to 1. That is a sum. And we have to prove that it's a right angle triangle at B. So how I'm going to prove that, say, in triangle ABC, this is 1A, this is 1A, this is root 2A. So the ratio is given as 1 is to root 2 is to 1. That means let's say the common ratio be A. Therefore, the first side will become 1A, second side will become root 2A, and third side will become 1A. Or vice versa, 1A, 1A, root 2A. Now, if we'll take this 1a square plus 1a square, what it will become 2a square. So ab square plus bc square क्या है बच्चों? ab square plus bc square है. Very good. That is 2a square. That's equation number 1. Now, what is equation number 2? Look at this. There is the third set remaining, that is ac. So ac का square करो, which will become root 2a का square. तो बन जाएगा 2a square. So 1 and 2 का RHS अगर check कर दे, they are same, 2a square and 2a square. So obviously the LHS has to be same. Am I right, guys? So from 1 and 2, we got to know that ab square plus bc square is equal to ac square. And student, we've just learned if AB square plus BC square is equal to AC square in our previous video, then what becomes? Then it becomes it's a right angle triangle at angle ABC, isn't it? Because AC is a hypotenuse, and that way this sum is proved that it's a right angle triangle. I hope you've understood this. Let's move ahead, guys, with sum number 12. So what is this sum number 12? Okay, wait, I'm choosing this 12 subpart 2. If AB is x, BC is 4x plus 4 centimeter and AC is 4x plus 5, हमको find क्या करना है? Find all the sides of the triangle. The first part and the second parts are same. I'll just show you how to do this subpart number 2. In triangle ABC क्या बोला है? Angle B is 90 degree. In triangle ABC, angle B is 90 degree बोला है, and AB is given as x. This is x, and okay. By the way, this is not the diagram. This is the diagram for 11. I'll just take it over here. Okay, AB उन्होंने बोला है x, AC उन्होंने बोला है 4x plus 5 and BC उन्होंने बोला है 4x plus 4. So now अगर हम लोग यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा देते तो क्या बन जाएगा बच्चों? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, that is 4x plus 5 the whole square is equal to 4x plus 4 the whole square plus x the whole square, isn't it? Hypotenuse square is equal to one side square plus second side square. Okay, so what we got? AC square is equal to AB square plus BC square. So AC square is equal to AB square plus BC square. We'll just substitute the values, and once we'll substitute the values, we'll have to do A plus B the whole square. A plus B the whole square क्या है बच्चों? It is 4x plus 5 the whole square. So 16x square plus 25 plus 4 into 5 20, उसका double 40x. तो यहाँ पर आ जाएगा 40x. फिर क्या करेंगे? 4x plus 4 the whole square करेंगे. Now 4x plus 4 the whole square क्या है बच्चों? 16x square plus इन दोनों का double. So 4 4 is 16, उसका double 32x plus 4 ka square, that is 16 plus x square. I hope you know this, student. We've already learned this in everything in expansion chapter, isn't it? Now student, 16x square and 16x square will get cancelled. So what we got already? X square ये इधर चला जाएगा minus 8x, ये इधर चला जाएगा minus 9. So ये we got this as a quadratic equation, x square minus 8x minus 9. And now student, how to solve this quadratic equation? Look at this, x square minus 8x minus 9. How to solve this quadratic equation? So the product is minus 9. We've already learned this also in the factorization chapter, isn't it, guys? So understand the chapters are interlinked. So आपको हर एक chapter बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा बच्चों. देखो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा -9 एंड सम क्या बनेगा बच्चों? सम बनेगा -8. सो ये क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर. अभी -9 के दो फैक्टर क्या है? -9 एंड +1, जिनका सम बनेगा -8, इजंट इट? सो -9 के ऐसे दो फैक्टर कौन से रहेंगे? -9 एंड +1, जिनका सम रहेगा -8. सो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस ये -8x कैसे स्प्लिट करेंगे? -9x + x -9. आई होप यू नो दिस हाउ टू डू दिस, इजंट इट? एंड अगर आपको ये सब नहीं आता है स्टूडेंट्स, यू कैन जस्ट वॉच माय वीडियो ऑन हाउ टू do factorization of quadratic equations or trinomials or splitting the middle term. Okay, now इन दोनों को split करो, इसमें से x कॉमन निकालेंगे तो x -9. फिर इन दोनों को स्प्लिट करो, इसमें से +1 कॉमन निकालेंगे तो x -9 बाकी बचेगा. फिर देखो यहाँ पर अच्छे से देखते हो तो x -9 कैन बी टेकन आउट कॉमन एंड x + 1 would be in the other bracket. So x + 1 into x -9 is equal to the 0. When the product of the two numbers is equal to 0, student, tell me when the product of the two numbers is 0. Come on, come on, come on, tell me when either of it is equal to 0. So x -9 would be 0 or x + 1 would be 0. So x -9 is equal to 0 implies x is equal to 9, or x + 1 is equal to 0 implies x is equal to -1. Now understand student, x is -1. Can x be -1? Can the side of the triangle be -1? No, it is impossible. So हम लोग क्या करेंगे? इसको रिजेक्ट करेंगे. देखो मैंने यहाँ पर लिखा है केस
case 2 where x is equal to -1, it's rejected. Why? Because the side of the triangle cannot be negative. So इसको लिखना पड़ेगा. अगर आप कुछ चीज को रिजेक्ट करते हैं आपके सामने से तो उसका रीजंस लिखना पड़ता है. रिमेंबर दैट स्टूडेंट, if you're rejecting something you must write the reason for the rejection. Why we are rejecting this? Because side of the triangle cannot be negative, isn't it? फिर x is equal to 9 is the correct answer. फिर हमको हमको क्या बोला गया है क्वेश्चन में? फाइंड द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल AB BC एंड AC. तो कैसे करेंगे? AB इक्वल टू क्या था? x था, सो x इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर. फिर BC, BC क्या है बच्चों? 4x प्लस 4. x की जगह पे क्या लगा देंगे? 9. सो 4 9 से 36 प्लस 4 40 सेंटीमीटर. फिर AC क्या बनेगा बच्चों? 4x प्लस 5. 4x प्लस 5 क्या हो जाएगा? 4 into 9 36 plus 5 41 centimeters. So the triplet would be 9 40 and 41. I hope you understood this, student, and here is the time to pause this video and put this quickly in your book. Hurry up guys. Hey guys, so in this particular part of the video, I'm going to talk how to write the geometrical proofs for this prove this sum or prove that sums. Are you getting it? These are standard 4-marker question in any 9th standard paper on Pythagoras theorem. So look at this. The question says in the given figure, AD is a perpendicular. AD क्या बोल रहा है? वो perpendicular बोल रहा है. Perpendicular means it makes 90-degree angle to somewhere. To what? To BC produced. ये जो BC को produce किया in the direction of C, उसके ऊपर वो परपेंडिकुलर बन रहा है. दैट मींस यहाँ पर वो 90 डिग्री एंगल बना रहा है. हमको प्रूव क्या करना है बच्चों? सी स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ax. सो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ax. देखो बच्चों, अगर आप यहाँ पर देख के ये सम सॉल्व करना चालू कर देंगे ना तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सी कहाँ पर एक जगह पे, ए कहाँ पर है, एक्स कहाँ पर है, पता नहीं है. सी देखो, कुछ चीजें होती है जब जब भी प्रूव दैट सम करते हैं ना, तो कुछ चीजें आपको माइंड में रखनी पड़ेंगी. मतलब जैसे कि एक राइट एंगल चूज करो, फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, फिर तीसरा पहले ज्योमेट्री लिखो, फिर चौथा अलजेब्रा लिखो, फिर जो अलजेब्रा और ज्योमेट्री ना उनको सिंक करो. ओके, तो पहले डायग्राम ड्रॉ करके ले लिया है अच्छे से, फिर अप्लाई पाइथागोरस करेंगे. अब पाइथागोरस थ्योरम कैसे लिखेंगे? पहले ट्रायंगल चूज करते हैं. ये सपोज ये है ट्रायंगल एबीडी, तो एबीडी में क्या लिखेंगे बच्चों? पाइथागोरस अगर अप्लाई करते तो यहाँ पर डी 90 डिग्री है. बोलो बोलो बोलो, समवन जल्दी से बोलो. से देखो, वेरी नाइस, सम पीपल स्टार्टेड सेइंग आल्सो दैट. सो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर. तो यहाँ पर लिख दिया AB स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम. उसके बाद क्या करेंगे बच्चों? ऑफ कोर्स, यस करेक्ट, विल हैव टू डू सब्स्टिट्यूशन. सो C स्क्वायर इज इक्वल टू ए, बीडी क्या होता है बच्चों? ए प्लस एक्स, बीसी प्लस सी डी. बीडी क्या है बच्चों? बीसी प्लस सी डी, दैट इज ए प्लस एक्स. सो यहाँ पर बन जाएगा ए प्लस एक्स द होल स्क्वायर प्लस एडी क्या है बच्चों? एडी है एच, एच स्क्वायर. ना इसको कैसे लिखेंगे बच्चों? देखो, ए प्लस एक्स द होल स्क्वायर क्या है? अलजेब्रा. मैंने बोला था आपको, पहले डायग्राम सिलेक्ट करो, फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, फिर ज्योमेट्री लिखो. ज्योमेट्री लिखने के बाद अलजेब्रा कंसीडर करना पड़ेगा. अलजेब्रा क्या है बच्चों? इसको देखो, इसका अलजेब्रा क्या है? ए प्लस एक्स द होल स्क्वायर क्या बनेगा? ए स्क्वायर प्लस 2ax प्लस एक्स स्क्वायर. एक्सपेंशन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस एच स्क्वायर. इसके बाद क्या करेंगे बच्चों? देखो, ये स्टेप हो जाने के बाद 1 सेकंड आपको ज्योमेट्री और अलजेब्रा को सिंक करना पड़ेगा. देखो देखो यहाँ पर अगर थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं, इन ट्रायंगल एडीसी में देखते हैं, एडीसी में क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर है बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर क्या है? बी स्क्वायर. देखो लिखा है यहाँ पर, रीजन में भी लिखा है, इन राइट एंगल ट्रायंगल एडीसी एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर. सो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर एज बी स्क्वायर. तो ये क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ax. हेंस प्रूव्ड. ये आ गया सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ax. इजंट इट वेरी वेरी सिंपल? Please pause this video over here itself and write it on everything in your book quickly. Hurry up guys. Okay, we will now in this part of the video, students, we will going to see one more application based sum on the Pythagoras theorem. So देखिए यहाँ पर m and n are the points. M and n are the points on the side QR and PQ. On the side QR and PQ respectively ऑफ ट्रायंगल PQR, ऑफ ट्रायंगल PQR. ना हमको प्रूव क्या करना है यहाँ पर? अच्छा, और एक चीज दिया हुआ है, इट इज राइट एंगल एट Q ऑफ ट्रायंगल PQR, एंगल Q इज राइट एंगल, ऐसे उन्होंने बोला है. एंड हमको प्रूव क्या करना है? PM स्क्वायर प्लस RN स्क्वायर. देखो, PM स्क्वायर प्लस RN स्क्वायर, what would you prove? It's equals to PR square plus MN square, which equals to PR square plus MN square. So देखो बच्चों, अगर आप डायग्राम देखते हैं ना तो थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं. कई लोग बोलेंगे सर यहाँ पर वैल्यूज क्यों नहीं दिए हैं? डायरेक्टली दे, अगर वैल्यूज दिए होते तो अच्छा होता था.
ऐसे कुछ सोचना नहीं है बच्चों, हमको क्या करना है, देखो ये LHS इक्वल टू RHS प्रूव करना है। तो कैसे भी आप किधर से भी स्टार्ट कर से सिर्फ LHS सिलेक्ट कर दीजिए। फिर LHS में देखो क्या है बच्चों, LHS में PM स्क्वायर प्लस RN स्क्वायर। सो PM स्क्वायर की वैल्यू क्या है, RN स्क्वायर की वैल्यू क्या है, वो ढूंढो, फिर उनको ऐड करो, अपने आप आपको राइट हैंड साइड में ये वाला पार्ट मिल जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग गाइस? जैसे मैंने पहले ही बोला था, पहले ट्रायंगल चूज करो, दूसरा पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, तीसरा अलजेब्रा लगाओ, चौथा अलजेब्रा और ज्योमेट्री को सिंक करो। देखो स्टेप बाय स्टेप वही करेंगे। देखो पहले ट्रायंगल चूज कर दिया, देखो पीएम स्क्वायर चाहिए तो कौन सा ट्रायंगल चूज करेंगे, पी क्यू एम। सो देखो इन ट्रायंगल पी क्यू एम दिख रहे हैं, पीएम स्क्वायर क्या है बच्चों, पीएम स्क्वायर क्या बन जाएगा, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू एम स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू एम स्क्वायर मिल गया बाय पाइथागोरस थ्योरम। फिर दूसरा ट्रायंगल चूज करेंगे, हमको चाहिए आर एन स्क्वायर, देखो हमको पी एम स्क्वायर तो मिल गया, फिर हमको चाहिए आर एन स्क्वायर। आर एन कहाँ पर है, देखो आर एन यहाँ पर है, आर्यन नहीं आर एन, ओके। आर एन कहाँ पर है, देखो यहाँ पर आर एन है। सो वी विल चूज ट्रायंगल आर क्यू एन। देखो इन ट्रायंगल एन क्यू आर, आर एन स्क्वायर इक्वल टू एन क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, बिकॉज पाइथागोरस क्या बोलता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस सेकंड साइड स्क्वायर। ए बाय पाइथागोरस थ्योरम आ गया। नाउ हमको जो एलएचएस में चाहिए था वो दोनों टर्म मिल गए। अभी क्या करेंगे, इन दोनों को, उन दोनों के बीच में कौन सा साइन है, देखो बच्चों यहाँ पर है इन दोनों के बीच में प्लस साइन, दैट मीन सम करना पड़ेगा। सो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड करते हैं। सो एडिंग 1 एंड 2 क्या करते हैं, तो क्या बनेगा, पी एम स्क्वायर प्लस आर एन स्क्वायर, ये बन गया लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में क्या बनेगा बच्चों, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू एम स्क्वायर प्लस एन क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। फिर बच्चों मैंने बोला था आपको, पहले देखो एलजेब्रा करो, मतलब सॉरी पहले बोला था चूज द ट्रायंगल, फिर दूसरा पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, मतलब ज्योमेट्री लिखो, फिर चौथा एलजेब्रा लिखो। एलजेब्रा लिखने के बाद क्या करेंगे, उनको देखो यहाँ पर एलजेब्रा लिखा, पहले पाइथागोरस लिखा, फिर पाइथागोरस लिखने के बाद एलजेब्रा लिखा। एलजेब्रा लिखने के बाद इनको देखो फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, पी क्यू स्क्वायर प्लस, देखो पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर लेते हैं, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर लेते हैं, तो क्या बन जाता है बच्चों, पी आर स्क्वायर बन जाता है। देखो पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर एक ब्रैकेट में ले लिया, बन गया पी आर स्क्वायर। समझ में आ रहा है? फिर दूसरा क्या है, देखो क्यू एन स्क्वायर प्लस क्यू एम स्क्वायर, क्यू एम स्क्वायर प्लस क्यू एन स्क्वायर, अगर उसको एक ब्रैकेट में ले लेते तो वो बन जाएगा एम एन स्क्वायर, एम एन स्क्वायर बन गया। देखो ये आ गया एम एन स्क्वायर, तो यहाँ पर देखो ऑटोमेटिकली पी आर स्क्वायर प्लस एम एन स्क्वायर राइट हैंड साइड बन गया। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इजंट इट वेरी सिंपल? सी द सम्स आर वेरी वेरी सिंपल, बट लोगों को थोड़ा सा डर सा होता है, अरे बाप रे ये सब कैसे आएगा, हमको कैसे आएगा, हमको क्यों नहीं आएगा। नो वरीज गाइस, आप 15 से 20 सम कोई भी टॉपिक के कर लेंगे, कोई भी चैप्टर आपको बहुत इजी लगना चालू हो जाएगा। ओके गाइस, सो हियर इज द टाइम, पॉज दिस वीडियो, राइट डाउन दिस क्विकली इन योर बुक, हरी अप गाइस, हरी अप। Okay guys, so in this part of the video what we're going to do, we'll see one more application based sum। देखो यहाँ पर कुछ चीजें हैं आपको समझ में आनी चाहिए, जैसे कि देखो most of the people they tell me sir whenever we see this Pythagoras proof sum हमको बहुत डर लगता है, हमको वो ये sum solve करने नहीं आता। Actually वो लोग क्या करते हैं पता है, they just focus on this diagram, they never read this English part, and that is the basic reason why they can't crack this prove that sum। So you आपको क्या करना है बच्चों, पहले ये सम पढ़ना है, फिर उसके साथ साथ डायग्राम को रेफर करना है। जैसे कि देखो इन ट्रायंगल एबीसी, मतलब इन ट्रायंगल एबीसी में देखो एंगल एसीबी 90 डिग्री, एसीबी किधर है उसको देखो 90 डिग्री है। फिर ए बी क्या बोला है उन्होंने, ए बी सी, देखो ए बी इज इक्वल टू सी मिल गया। फिर देखो बी सी इज इक्वल टू ए यूनिट, बी सी कहाँ पर है, देखो बी सी इज इक्वल टू ए यूनिट। फिर ए सी इज इक्वल टू बी यूनिट, देखो ए सी यहाँ पर मिल गया है विच इज बी यूनिट। फिर सी डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, देखो सी डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी मिल गया, परपेंडिकुलर मतलब इट मेक्स 90 डिग्री। एंड देन सी डी इज गिवन एज पी यूनिट, उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है। हमको प्रूव क्या करना है, 1 बाय पी स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय ए स्क्वायर प्लस 1 बाय बी स्क्वायर। बहुत सिंपल सम है गाइस, बहुत ही वेरी सिंपल सिंपल वाला सम है, लेकिन थोड़े से लॉजिक्स है यहाँ पर, थोड़े से एप्लीकेशंस है यहाँ पर। वन बाय वन मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपको ये पूरा का पूरा सम बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ये सम आपके एग्जाम में बहुत सारे स्कूल के पेपर में मैंने देखा है 4 मार्क के लिए पूछा जाता है, तो बहुत अच्छे से इसको समझ लेते हैं। देखो बहुत ही इजी सम है, लेकिन समझ में आना चाहिए। देखो पहले एक ट्रायंगल एसीबी चूज करें। एसीबी में क्या है बच्चों, मैंने शुरुआत में ही बोला है आपको, पहले एक तो ट्रायंगल चूज करना पड़ेगा जिसमें वन एंगल राइट एंगल होगा, वो चूज करना पड़ेगा। दूसरा उसका ज्योमेट्री लिखने को आना चाहिए, मतलब पाइथागोरस थ्योरम लिखने को आना चाहिए, उसके सब्स्टिट्यूशन करने को आना चाहिए, और चौथा एलजेब्रा लगाने को आना चाहिए, और पांचवा स्टेप रहेगा इनका एलजेब्रा और ज्योमेट्री को सिंक कर दो। देखो पहले यहाँ पर ट्रायंगल एसीबी चूज कर लेते हैं। अब कई बच्चे बोलेंगे सर आपने एसीबी चूज किया, अगर मैंने एडीसी चूज किया तो, या फिर बीडीसी चूज किया तो।
गाइस थोड़े से आपको ना ये जजमेंट आते जाएंगे, जब जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी वैसे आपके जजमेंट थोड़े से इंप्रूव होते जाएंगे। देखो यहाँ पर पूरा ट्रायंगल कंसिडर करना पड़ेगा, इसके लिए मैंने ए बी सी को कंसिडर कर लिया है। ओके, सो ए सी बी में क्या एंगल ए सी बी में एंगल सी 90 डिग्री बोला गया है। सो पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस स्क्वायर, दैट मींस ए बी का स्क्वायर करेंगे, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर लिख देंगे, जो मिल गया हमको सी स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो सी यहाँ पर ए बी है, सो सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए गया, सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया, दैट इज इक्वेशन नंबर 1 बोलते हैं। नाउ अंडरस्टैंड, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, प्लीज लिखने के लिए घाई मत कीजिए, मैं आपको बोलूंगा तब जाके वो वीडियो पॉज कर दीजिए और फिर लिखिए। यहाँ पर थोड़ा सा अटेंशन कीजिए स्क्रीन के ऊपर। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या है, देखो पहले ए बी सी का एरिया ढूंढ के ले लेते हैं। अब बोलेंगे सर हमको ये स्ट्राइक कैसे होगा, डोंट वरी बच्चे, ऐसे ही अब ट्राई 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 करते रहेंगे तो अपने आप ये स्ट्राइक होने चालू हो जाएंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या है बच्चों, बोलो। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी दो तरीके से ढूंढा जा सकता है, व्हेन बेस इज सी एंड हाइट इज पी, that is one way, and the second one is when the base is b and the height is a. Are you understanding guys? So दोनों को तरीके से लिख देते हैं यहाँ पर, हाफ इंटू ए बी इंटू सी डी, पहले बोल रहे हैं हाफ इंटू ए बी इंटू सी डी, और दूसरा बोल रहे हैं हाफ इंटू बी सी इंटू ए सी, हाफ इंटू ए सी इंटू बी सी। मतलब जब ये बेस रहेगा तो ये हाइट बन जाता है, और जब ये बेस बनता है तब ये हाइट बन जाता है। ये टाइप के सब हमने ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री में भी देखे हैं कि कौन सा बेस लेना है कौन सा हाइट लेना है, आपको समझ में आना चाहिए बच्चों। ओके, सो हाफ इंटू ए बी इंटू सी डी या फिर हाफ इंटू बी सी इंटू ए सी। देखो इसके बाद सब्सटीट्यूशन करते हैं, हाफ इंटू ए बी क्या है बच्चों, ए बी है सी, तो यहाँ पर सी लिख दो, सी डी के सी डी है पी, सो हाफ पी सी, और ये क्या बन जाएगा हाफ ए बी। सो हमको सी की वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी बच्चों, देखो ये हाफ और हाफ कट जाएगा, सो सी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, ए बी अपॉन पी। सी की वैल्यू क्या मिल गई बच्चों, ए बी अपॉन पी। ना ये सी की वैल्यू जो है ए बी अपॉन पी, हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सी स्क्वायर की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सी स्क्वायर क्या बनेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। सो ये बन गया इक्वेशन नंबर 1 में, जैसे ये सी की वैल्यू डालेंगे तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर विच इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एंड नाउ स्टूडेंट यहाँ पर हमारा मोस्टली सम कंप्लीट हो गए, सिर्फ एक इंपॉर्टेंट स्टेप बाकी बचा है। देखो पहले हमने पाइथागोरस लगाया, फिर एरिया ऑफ वन ट्रायंगल विद टू डिफरेंट मेथड लगाया, उससे हमको सी की वैल्यू मिल गया, एंड द सीज वैल्यू वी आर सब्स्टिट्यूटिंग ओवर हियर, दैट इज एज ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन पी इज इक्वल टू बी स्क्वायर ए स्क्वायर। अब क्या करेंगे बच्चों, देखो यहाँ पर मुझे चाहिए था 1 बाय पी स्क्वायर, तो क्या ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर नहीं चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, एवरी टर्म 1 2 and 3, all the three terms I'll divide by a square b square, डिवाइडिंग ईच टर्म बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 बाय पी स्क्वायर, और ये बन जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये बन जाएगा प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। जब ये बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा तो बी स्क्वायर कट जाएगा तो 1 बाय ए स्क्वायर, बट बाकी बचेगा प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर कट जाएगा तो बाकी बचेगा 1 बाय बी स्क्वायर। एंड दैट इज व्हाट ओवर हियर वी achieved over here students, isn't it? 1 by p square is equal to 1 by a square plus 1 by b square. Isn't it very very simple sums guys? The sums are really simple. The only thing is your memory and how you understand the sum. पहले ट्रायंगल चूज करो, फिर एक ही ट्रायंगल का दो तरीके से एरिया ढूंढा, फिर उससे सी की वैल्यू मिल गई, वो दिस सी की वैल्यू वी सब्स्टिट्यूट ओवर हियर, एंड फिर वी सब once we'll substitute over here, we'll divide each term by a square b square, जिससे हमको ये फाइनल आंसर मिल गया है। चार इंपॉर्टेंट स्टेप है, चार इंपॉर्टेंट स्टेप कर दोगे तो 4 मार्क मिल जाएगा, isn't it? Now it's time to pause the video and write down this quickly in your book. Hurry up guys, hurry up.